अगर नून लीग वालों ने खाया ना, उन्होंने लगाया भी है। अगर वो चोर आए थे ना, वो चोर थे, वो उन्होंने 30 साल से खाया। ये डाकू आया, इसने 4 सालों में वाम का खून निचोड़ दिया। All the scenes or characters in this video are real. We personally do not support any kind of propaganda or not a part of any kind of these activities. Most of scripts are based for fun and most of them are related to educational and awareness purpose only. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟੰਗਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ 8-9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਨੂੰ। 8-9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟੇਕ ਲਿਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮੇ ਫਿਰੇ ਹੋ ਲੋੜ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਕੱਲ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤਾਂ? ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦੇ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰੇ। एकदम बहुत प्यार देंगे आ, सारे लोग बहुत प्यार देंगे आ। ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਇੰਜ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਸਹਿਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਜੈਦ ਦੀ ਲੱਸੀ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ। ਉਹ ਲੱਸੀ ਪੀਤੀ ਉਹ ਜੈਦ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜੇ ਤੇਰੀ ਲੱਸੀ ਹਾਂ। ਪੀ ਲਈ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲੱਸੀ ਪੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ। ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਸੀ? ਨਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ। गए सी कहते राती 12 बजे आओ, 12-1 बजे आओ तो मिलेगी। ਲੱਸੀ ਦਾ ਕੀ ਖਾਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਲੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਿਰ ਖਾਦਾ? ਕੁਝ ਤੇ ਖਾਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੱਲੀ ਲੱਸੀ ਪੀਤੀ ਹੈ। लस्सी मिली। ਉਹ ਲੱਸੀ ਪੀਤੀ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਐਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ 27 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? 27 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। 27 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਹੋ? ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਆ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਆਏਗਾ? ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਚੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਹੀ ਦੱਸੋ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਣਾ? ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਦੋਸਤ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ? ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੋਂਦੇ ਪਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਜਿੰਦੀ 1000 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ। ਜਿੰਦੀ ਸੈਲਰੀ ਸਿਰਫ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਤੇ ਇੰਨੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੂਟ 5000 ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸੂਟ ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ? ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ, ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਕੀਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਰੋਗੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਲਰੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਸਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ 1000। ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਖੰਡ ਦੁੱਧ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਦੋਂ ਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ? ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ ਚਲਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਨੀ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਪੂੜੀ? ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਐਸੇ ਮਹੀਨੇ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਆਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਪੱਕਾ? ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਾਂਗੇ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ। चले इजाज़त दो, बहुत चंगा लगा टड़ना गल करके। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई क्या नाम है आपका? अली। अली भाई ये आपकी शॉप कब से है यहाँ पे? 40-50 साल से है। अच्छा तो 40-50 साल से जब आप काम कर रहे हैं, आपको उस काम में या इस साल में क्या फ़र्क नजर आया? बहुत फ़र्क पड़ गया, बहुत डिफरेंट हो गया। महंगाई का इतना तूफ़ान आ गया हुआ है, वाम की कुफ्ते ख़रीद ही नहीं है। रोज़ाना हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। किस चीज़ का रेट बढ़ रहा है? पेट्रोल का रेट बढ़ेगा, डॉलर का बढ़ेगा, इन चीज़ों का ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो आपकी पिछली साल में और इस साल में कितनी सेल का क्या फ़र्क पड़ा? क्या सेल कर पा रहे हैं? कुछ लोग आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं आपसे? ये पिछले साल की निस्बत से नहीं है, ये 3-4 साल से जब से ये खान साहब आए हैं ना,
इन्होंने ऐसा तड़का लगाया वाम को, मैं कहता हूँ इन्होंने खुद तो कुछ कोल पकड़ी हुई थी, इन्होंने वाम को भी पकड़ा दिया इन्होंने। नहीं, तो आपका कहना का मतलब है कि ये हुकूमत 3-4 से ख़राब हुई है, पहले बिल्कुल ठीक थी। पहले अल्लाह का शुक्र बहुत बेहतर था। 2018 में जब मियां नवाज शरीफ गवर्नमेंट छोड़ के गया था, उस टाइम पेट्रोल 65 रुपये लीटर था, तो आज पेट्रोल 282 रुपये लीटर है। किसकी वजह से है? थोड़ी सी नालायकी की वजह से ये इतनी महंगाई है। लेकिन वो लोग तो कहते हैं कि ये हुकूमत ये जो अब आई है, ये साल हुई है, इसने ये सारा काम ख़राब किया। पहले जो हुकूमत थी वो मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन उस हुकूमत ने बहुत बेहतर किया, लोगों की बहुत मदद की है, बहुत इमदाद की है। आप कहते हैं कि वो ये हुकूमत ठीक नहीं है? मुझे आप एक बात बताएं, आपको बाहर के मुल्क से अगर एड या इमदाद मिली है कोरोना की वजह से, तो अगर 12-12 हज़ार रुपया दे दिया आपने, डबल तो वाम के अंदर से खून निचोड़ के निकाल लिया बिजली के बिलों के ज़रिए। आपका मतलब है कि ये बिल और ये जो चीज़ें महंगी हुई है, इसके ज़रिए पैसे निकाले गए हैं? बिल्कुल ऐसे निकले हैं। मुझे ये बात बताएं आप, डैम का पैसा इकट्ठा हुआ है वो किधर गया? डैम का पैसा चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब इकट्ठा करके गए हैं, वो पैसा किधर गया? वो किस हुकूमत से? पापा जी कहते थे जी, ये किस हुकूमत ने इकट्ठा किया? ये काफ लीग की इसकी इमरान खान की हुकूमत में इकट्ठा हुआ, पीटीआई की हुकूमत में। तो आपका मतलब है कि ये सारी महंगाई, ये पेट्रोल, डॉलर, हर चीज़ उसकी इमरान खान की हुकूमत? 2018 के बाद हुआ है जो कुछ भी हुआ है ना, ये मुल्क का बहरान हुआ है, ये 2018 के बाद हुआ है। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए। ये हमारा मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के बाद बहुत बड़ी कुर्बानियों के बाद हमें मिला ये, तो इसको ये दीमक की तरह चाटने आए हैं। इन्होंने चाटना है, लेकिन इन्होंने ख़त्म हो जाना है, हम लोगों ने ख़त्म होना है, इस मुल्क ने रहना है। नहीं, तो बाकी पब्लिक बहुत कहती है कि यार पीटीआई ठीक है, वो ऐसे कह रही है, वो वैसे कह रही है, हर कोई पीटीआई का साथ दे रही है। आप कहते हैं कि नून लीग ठीक है, इसमें क्या फ़र्क? मैं नून लीग को भी ठीक नहीं कहूँगा। उन्होंने वो कहते हैं, उन्होंने हाँ। लगाया, मेरी बात सुने, मैं इस चीज़ से इतफाक़ करूँगा क्योंकि पीटीआई की हुकूमत अपनी जगह पे है, नून लीग की हुकूमत अपनी जगह पे है। अगर नून लीग वालों ने खाया ना, उन्होंने लगाया भी है। अगर वो चोर आए थे ना, वो चोर थे, वो उन्होंने 30 साल से खाया। ये डाकू आया, इसने 4 सालों में वाम का खून निचोड़ दिया। नून लीग ने कहाँ लगाया? आपको बनी सड़कें नज़र आ रही हैं। इतना बड़ा महंगाई का तूफान नहीं था। बिजली लोड शेडिंग मियां नवाज शरीफ के दौर में ख़त्म हुई है। महंगाई का खात्मा उन्होंने किया, दहशतगर्दी का खात्मा किया उन्होंने। तो आप क्या कहना चाहते हैं, अगर वो नवाज शरीफ की हुकूमत वापस आ गए तो या कि ये जो हालात है ये ठीक हो पाएंगे? मैं ये नहीं चाहता हूँ कि नवाज शरीफ ही वापस आए, मैं ये चाहता हूँ कि जो मर्ज़ी आए हमारे वाम के लिए बेहतर आए। जो रोज़ाना का तड़का वाम को महंगाई के साथ लग रहा है ना, पीस चुकी है महंगाई का इतना तूफान। इन दिनों में इधर खड़े होने की जगह नहीं होती थी, आपको टामा बंदे नज़र आ रहे हैं। मतलब पिछले रमज़ान में इस रमज़ान में फिर भी बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। लेकिन फिर भी मेरी बात का एक जवाब नहीं आप दे रहे। पिछले हुकूमत, जब पिछले हुकूमत थी ये साल पहले, फिर भी लोग कहते थे कि पेट्रोल ठीक था, डॉलर ठीक है। ये जब ये साल हुकूमत चेंज हुई है तो इसमें फिर ये काम ख़राब हुआ है। तो ये हुकूमत तो किसी और की है, इमरान खान की हुकूमत तो साल में नहीं है। आप IMF के साथ जो मुआहदे करके गए हैं वो पूरे भी तो करने हैं कि नहीं करने हैं? जो जनाजा आप मैशियत का निकाल गए हैं वो कैसे सीधा होगा? वो अब टाइम लगेगा। इन्होंने अगर ये मियाँ शहबाज शरीफ ने डिफ़ाल्टर में संभाला ना, तो ये अब टाइम लगेगा इसे सही होने में। ये अगर आप कहते ना कि 1 मिनट 1 दिन में सही हो जाएगी या 1 महीने में सही हो जाएगी, ये ऐसे नहीं होगा। इसके ऊपर अब टाइम लगेगा। अवाम को मिलकर चलना पड़ेगा, कंप्रोमाइज़ हमें करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट को भी चाहिए महंगाई का, अगर ये नारा लगा के आए थे ना जी हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे, इनका काम बनता है अवाम को रिलीफ देना। ये इन्होंने 3-3 आटे के थैले दिए हैं, वही ये आटा रेट कम कर देते। 400-500 650 का मिल रहा था, वो 400 का कर देते, सारे लेते, इतनी जानें ज़ाया भी ना होती। जो उनसे 5-6 या 7 बंदे शहीद हुए या मरे हैं, वो ये काम ना होता। अच्छा, मुझे बताइए कि जल्द से जल्द इलेक्शन होना चाहिए। देखें जी, इलेक्शन ये 21 अरब रुपया मांग रहे हैं पंजाब हुकूमत के लिए कि पंजाब इलेक्शन, मैं कहता हूँ कि चारों सूबों में इलेक्शन एक साथ होना चाहिए। ऐसे अवाम के ऊपर महंगाई का बोझ और पड़ेगा। अगर आप एक सूबे का इलेक्शन करवाते हैं, दूसरे का नहीं होता। चारों सूबों के इलेक्शन इकट्ठे हों, चाहे अक्टूबर में हो, चाहे अगस्त में हो, चाहे कल हो, इकट्ठे होंगे तो फ़ायदा होगा। अच्छा, मुझे आपने बताया कि हुकूमत को आपको पैगाम देना चाहिए, इस वाली हुकूमत को, तो क्या देंगे? मैं इसको कोई पैगाम नहीं दे सकता हूँ। ये खुद समझदार हैं, इन्हें चाहिए कि अवाम के लिए कुछ सोचें, महंगाई को कंट्रोल करें। इन्होंने नारा लगाया ये मिक्स फ्रूट चाट है, मेरी हुकूमत बीच में है साथ। मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ, इन्हें चाहिए कि अवाम के लिए कुछ करें।
अगर ये कुछ करने का अज़म लेके आए ना तो वाम के लिए कुछ करें बस। चलिए थैंक यू सर। ओके। चलिए ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? ठीक ठाक, रिजवान नाम है सर। अच्छा, आप यहाँ पे जॉब करते हैं? मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, कब से? काफ़ी अर्सा हो गया। मतलब कुछ 5-6 साल हो चुके हो? हाँ जी, इससे ज़्यादा हो गया। इससे ज़्यादा हो गया। अच्छा, मुझे बताया आपको इस हुकूमत में या पिछले हुकूमत में क्या फ़र्क नज़र आया? बहुत फ़र्क आया है। देखें, महंगाई इतनी हो गई है कि यहाँ से अगर 1000-1500 रुपये हम लेके जाते हैं तो हमारे पास सुबह 1 रुपया नहीं बचता। जो आटा हमें सस्ता मिलता था, अब 1150 रुपये का आटा आता है, 600 का घी आ गया। एक दिन की 1800 रुपये की तो ये इनकम आपकी आ गई। पिछले गवर्नमेंट में तो बड़ा कुछ था। बहुत महंगाई है भाजी। करोगे कल? क्या सोचते क्या रहे क्या नहीं रहे। पब्लिक है या शॉपकीपर है? पब्लिक ये देखे मेरे सारे बच्चे। मतलब शॉपिंग करने आए हुए हैं आप? जी भाजी। तो क्या जो आप पिछले रमजान में 2-2 बच्चों के सूट खरीदते थे, क्या उस बार भी इतना खरीद पा रहे हैं आप? बिल्कुल बाजी बिल्कुल, ये आज वो हाथ नहीं लगाने दे रहे। 5000 से नीचे सूट ही कोई नहीं है। बच्चे का? बच्चे की बात कर रहा हूँ बाजी। इतनी महंगाई हो? इतनी ज़्यादा महंगाई, वो मेरी मिसिज है साथ, मैं सोच रहा हूँ कि इसको क्या लेके दूँ, इसको क्या लेके दूँ। मुझे लगता है तुझे शॉपिंग कितनी नहीं है। बेस पे वो सरकारी मुलाजम हूँ, कुछ भी आप देख ले खाली हाथ है कुछ। क्या करेंगे फिर अगर इस बार बच्चों को शॉपिंग ना करवा के देते हैं? बस क्या करेंगे अब, ऐसे ही गुजारने हैं दिन, क्या करें। पाकिस्तान है, क्या कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताया आपको पिछले रमजान और इस रमजान में कोई फर्क नजर आया? बहुत पिछले ज़्यादा रमजान भी था। ओ बाजी बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आया। जो पिछले रमज़ान हम 1000 रुपये का सूट लेते थे वो 5000 से कम नहीं मिल रहा। 4000 ज्यादा महंगा हो? जी बाजी, क्यों? पता नहीं अब ये क्या एकदम हुआ, क्या है कुछ समझ नहीं लग रही। आप किस हुकूमत की बात करेंगे जरा हम कैमरे के सामने? मैं किस हुकूमत की बाजी बात करूँ, मैं किस हुकूमत की बात करूँ। वो कहते हैं जो पिछलों ने की है, ये कह रहे इन्होंने की है। अब किसको कसूरवार ठहराएं। अब आम तो पीसी जा रही है बाजी यार, तीसरे चौथे दिन। अब आज ये इतना हो गया है। अब देखें पेट्रोल, 2 दिन बाद पेट्रोल का रेट कुछ समझ नहीं लग रही। 5 साल पहले पेट्रोल ठीक था? आपके सामने बाजी बिल्कुल ठीक था। पहले महंगा नहीं था? नहीं था बाजी में, 5 साल में महंगा ज्यादा हुआ है ये ज़्यादा महंगा हो गया। और इस साल में कुछ ज्यादा हो गया। मुझे ये प्यारी बहना, मुझे ये बताएं आप, 300 रुपये पेट्रोल है। एक मजदूर है, उसकी आमदन वही है, उसकी सैलरी नहीं बढ़ी, सैलरी उसी वही रेट है, सैलरी का वही है। अगर कोई मजदूर अपना कहता है यार मेरी सैलरी बढ़ाओ, वो कहता जाओ भाई मैं तो इतने दे सकता हूँ। कोई भी प्राइवेट कंपनी आपकी सैलरी नहीं बढ़ाएगी। प्राइवेट तो दूर की बात, सरकार नहीं आपकी बढ़ा रही रेट। उसको उनको पता है कि ये मजदूर तबका है, सैलरी बेस पे है, तो वो भी नहीं बढ़ा रही है आपकी सैलरी। सरकारी हो या प्राइवेट हो, दोनों मार रहे हैं। इनकी मतलब सैलरी दिन के दिन दिहाड़ी है 500-600, वो 300 का पेट्रोल लगाएगा, 300 गाड़ी लेके जाएगा। बाजी 300 घर जाके क्या करेगा। अब पिछले दिनों एक सारे रो रहे हैं। अब एक बहुत ज़्यादा भी कमाई कर लेगा 1000 रुपये की, 1000 रुपये कमा लेगा वो, तो 1000 में बाजी वो घी लेगा या बच्चों को खाना खिलाएगा या उसकी शॉपिंग। 1000 रुपये ज़्यादातर जो हमारे पाकिस्तान में तबका है वो 1000 वाला ही है, और वो मार रहा है बेचारा, क्या करें। आप किसको कहना चाहेंगे, कौन कर रहा है? कोई तो हो ना, हर हुकूमत एक जैसी है। बाजी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे कोई भी हुकूमत हमारे लिए नहीं सोच रही, वो आपस में लड़ रहे हैं बस। आप मुझे ये बताएं, एक मुझे क्वेश्चन का जवाब दे कि पहले आवाम को ठीक होना चाहिए या हुक्मरान ठीक हो? बात तो वैसे आपने बड़ी अच्छी की है। कहते हैं ना जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। ये 10 लोग भाग के उधर चले जाते हैं, 10 उधर चले जाते हैं, सारे डट जाए एक जगह पे। मेरा तो ये नारा है, किसी की ऐसी की तैसी जो आपके ऊपर हुक्मरान दूसरा है, आप खुद डील देते हैं। हम लोग डील दे रहे हैं। बिल्कुल। फिर आप कहते हैं जी हमारे लिए ये हुकूमत नहीं ठीक। आपको सिर्फ मैं आवाम को कहना चाहता हूँ कि 1000 रुपये की ये आप कह रहे ना 1000 रुपये हम कमाते हैं, आपको कोई 1000 की लालच देता तो आप आके उधर चले जाते हैं। लानत इस 1000 रुपये पे। बिकाओ। मैं यही कहना चाहता हूँ, बाजी ने मुझे एक हिंट दी है, बड़ी अच्छी बात की है। हम लोग ठीक हो जाए ना तो कसम खुदा की ये पाकिस्तान ठीक हो जाए। सबसे पहले अपने घर को ठीक करो, अपने गली मोहल्लों को ठीक करो। जब ये आप शुरू कर दोगे पाकिस्तान खुद वो, हर बंदा अपने घर को ठीक करना शुरू कर दे, हर बंदा अपने घर को ठीक करे, उसके बाद मोहल्लों को, गली मोहल्लों को ठीक करे। बाजी ये मेरी एक बेहतरीन मिसाल है और मेरी बात है। आप कहते हैं ना ये पाकिस्तान को एकदम ठीक कर ले, ये झूठ है, ये झूठ है। सबसे पहले हर बंदा अपने घर को ठीक करे,
गली मोहल्लों को ठीक करे, फिर उसके बाद पाकिस्तान की तरफ बढ़े, सबको लेके बढ़े, इंशाल्लाह निज़ाम ठीक हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, पिछले 4 साल में ठीक है पेट्रोल महंगा था, डॉलर महंगा था, इस साल में डॉलर और पेट्रोल बहुत महंगा हुआ, लेकिन आवाम बाहर नहीं निकल रही, क्यों? बाजी महंगाई इतनी, इसीलिए तो बाहर नहीं निकल रही। क्यों नहीं निकल रही? निकले तो चाहिए, डॉलर सस्ता हो, पेट्रोल सस्ता हो, आवाम निकलती नहीं है, कहते ठीक है होता जाए। वो मजबूर हो गई है बहना, वो मजबूर हो गई है, मेरी बात आवाम मजबूर हो गई है। पहले था लोगों के पास खाने पीने का कुछ जरिया था, अब लोगों के पास कुछ, उन्होंने कहा देखें मैं हूँ ना, मेरे बच्चे हैं, अब मैं बच्चों को मरता नहीं देख सकता बाजी। मेरी कोशिश यही होगी कि मैं कुछ ना कुछ उनको रात को नवाला खिला दूँ बाजी, ये मेरी ख्वाहिश होगी ना। बच्चे हैं मेरे, वो देखो बेगम देखेगी। अगर मैं बाजी हुकूमत की तरफ निकलूंगा तो मैं अपने बच्चों को भूखा मार क्या करूँगा? मतलब अब एक 100 रुपए की चीज़ है, वो आप 300 में खरीदना चाहेंगे वो 300 रुपए की चीज़, लेकिन बाहर नहीं निकलेंगे। बाकी सारी बातें बेकार हैं। हमारी हुकूमत हर दौर में कोई ना कोई हमें नीचे कोई ना कोई वो देखती रही कि अवाम को कैसे हमने चुप कराना है, बैठाना है। उन्होंने अब आज महंगाई ज़्यादा करके अवाम को चुप करा ही दिया, चुप ही हो गए, आवाम चुप हो गई जी, आवाम मजबूर हो गई, चुप ही हो गई है। अब इससे बढ़ के और महंगाई वो होता ना, अगर ये पेट्रोल 500 का हो गया तो सर में जी, अगर ये 500 का पेट्रोल हो गया बाजी होने वो नवाशी साहब ने कह दिया, नवाज शरीफ ने कहा हाँ जी 500 पेट्रोल होगा, 500 होगा, वो आपने सुना। यार 500 की है, वो 500 का पेट्रोल खरीदेंगे या घर खिलाएंगे? अब आवाम जो हमारी है ना बाजी, अब कहता ना बंदा एक पुकारता रहता, अब कहता जो करना हो जाए, मैं मर गया। आवाम ढीठ हो गई है, कहती होना हो जाए, इधर ये सुधरने। ये पाकिस्तान है। सबसे बड़ी बात जो मैं किसी को भी नहीं पता, जो मैं इम्पोर्टेड बात करने जा रहा हूँ, ये दुकानदार ताजर है, मैं सबके लिए करने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी जो बात है ना, हम करज़ई हैं, ठीक है, गोरे कभी हमारे नहीं बन सकते, काफिर कभी मुसलमान का नहीं बन सकता। काफिर आपके पीछे लग गए हैं, वो खाना जंगी आपके मुल्क में करा दी उन्होंने, वो दूसरी जंग तो आलमी जंग तो करा नहीं सके, क्योंकि हम खुद जारी बात है एटमी ताकत हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल जी आप क्या नाम है? मेरा नाम ख्वाजा शाहिद। अच्छा आपके ये अनारकली में कब से शॉप है? इधर जब से ये पार्टीशन हुआ ना, हमारी दुकानें इधर अपनी है ज़ाती। नहीं मतलब कितने साल से काम कर रहे हैं आप? तकरीब मेरी उम्र क्या पूछ रही है, दुकान का है। दुकान तो जब से ये पार्टीशन हुआ ना, नहीं पता ना, आप मुझे बताएं। जब से अलहदगी हुई ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जब जंग हुई है, लड़ाई हुई है, उस टाइम से। मतलब कि 70-80 साल हो चुके हैं? हाँ जी, 70-75 साल। तब से हुकूमत जब से ये चल रही है, उस टाइम के हालात और इस टाइम के हालात, इस 5 साल के अंदर अंदर आपको क्या फ़र्क नज़र आया? पहले जो हालात थे ना, पहले कुछ बेहतर भी थे। जैसे एक मिसाल जुल्फ़कार भट्टो वो थे, बेनज़ीर थी, ज़िया का दौर था, फिर मुशर्रफ का आया। उनके दौर में कुछ ना कुछ बेहतर भी था। मसला हर घर में कोई ऐसी परेशानी नहीं होती थी। जब से ये चला ना, ये ट्रेंड इनका जो कर रहे हैं आजकल, हेरा फेरी सब, चाहे नवाज शरीफ है चाहे इमरान खान, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, एक जनरल बात कर रहा हूँ कि जो आता है ना वो लूटता है, वो अपने ख़जाने भरता है। हालांकि ये भी एक बात आपको समझ आनी चाहिए, समझदार हो, कि उनका वज़ीर आज़म इधर आते हैं, किन के? जो बाहर अमेरिका, लंदन, चाइना के, वो तो आते कभी कभार आए, अपने चले गए, एक आधे दिन के लिए आए मेहमान तौर को, बल्कि इनको देकर जाते हैं वो। तो ये जब से ये वज़ीर आज़म बने, वज़ीर आला बने, ये सब उधर बैठे हुए हैं। कम से कम इनको अपने मुल्क का, अपने पाकिस्तान का कुछ अच्छा सोचना चाहिए, पब्लिक के लिए भी, आवाम के लिए भी, हैं, को महंगाई को थोड़ा सा कंट्रोल करें। हर चीज़ पे इन्होंने टैक्स लगाए हुए हैं। आपका कहने का मतलब है कि जो सी भी हुकूमत आई है उसने आके टैक्स लगाया है, वो ये कर रही है, वो कर रही है, हर हुकूमत लूट रही है। एक बात मैं आपको बता दूं बेटा, जब जुल्फ़कार अली भुट्टो थे ना, उनके टाइम में हर गरीब आदमी को भी खाना मिलता था, हर चीज़ रोटी मिलती थी, खुले पैसे थे और चीज़ें भी सस्ती थी। मुशर्रफ का दौर आया, ज़िया का दौर आया, उन्होंने कुछ असूल रखे, उनके दौर में भी कुछ अच्छा ही चला काम, कारोबार भी था। अब तो कारोबार भी नहीं है,
तो कई ऐसे हमारे बहन भाई हैं जो बिल्कुल सफ़ेद पोश है, वो ये करते हैं, वो अपनी इज्जत और शर्म की या में अंदर घुस जाते हैं, वो बोलते भी नहीं हैं। कई ऐसे मैंने अपनी आंखों से देखे ऐसे चांस कि कई ऐसे हैं सफ़ेद पोश जो किसी के आगे हाथ नहीं पिलाया, अपनी मौत अपने बच्चों को भी दे दी है, अपने भी कर दिए और बच्चों को भी। ऐसे ऐसे हालात हैं। तब आपका कहने का मतलब है कि ये 15-20 साल से हुकूमत जो चल रही है वो सारी फ्रॉड चल रही है, कोई ना कोई आता है लूट के ले जाता है, कोई आप किसी भी हुकूमत से खुश नहीं है? नहीं जी, खुश। अच्छा मुझे आप ये बताएं, आप मार्केट में बैठे हुए हैं, पिछले रमज़ान और इस रमज़ान में की सूरत हाल क्या? नहीं, पिछले रमज़ान में भी ऐसे ही था, उससे पहले 2 साल कोरोना हुआ, उसके कई ऐसे जो थे ना जिनके पास लाखों रुपए थे, उनके पास भी एक दमड़ी भी नहीं रही थी। घर में बैठना, ना कारोबार होना, ना किसी ने आना ना जाना। नहीं तो पिछले साल तो कोरोना नहीं था ना? नहीं, ये पिछले साल और अब ये कुछ थोड़ा सा बेहतर है, वो भी ईद के दिन। आगे आ जाएगी गर्मी, फिर ठंडे हो जाएंगे बाजार। नहीं तो पब्लिक कहती है कि पिछले रमज़ान भी बिल्कुल बेहतर था, इस रमज़ान को ज़्यादा खराब हो गया, डॉलर महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया। रमज़ान में बेहतर था, अब भी बेहतर ये कुछ, मगर वो चीज़ें, वो सहूलतें नहीं हैं पब्लिक और आवाम को, ना किसी गरीब आदमी को, ना किसी सफ़ेद पोश को, वो चीज़ें नहीं है मुहैया। तो आप मुझे ये बताएं किसको ठीक होना चाहिए, हुक्मरान को ठीक होना चाहिए या आवाम को ठीक हो? नहीं, आवाम को भी होना चाहिए, हुक्मरान तो है, किस तरह? वो कुछ इनके साथ अच्छा बर्ताव करे। कई तो ऐसे इंसान हैं कि जो इनके साथ लगे हुए, जिनको पैसे लगे हुए हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे अपनी कंपनी बनवा ली हुई है कि मुंह बंद कर दिए हुए हैं। मतलब बिके हुए हैं। हाँ, जो इनके सपोर्टर है, ये लो, ये तुम्हारा प्लॉट, ये है, ये लाखों, ये करोड़ों। अब ये देखे ना, वो क्या थे, वो बाजवा के कौन था जो आर्मी वाले, अरबा खरबा डॉलर उन्होंने इकट्ठे किए, मुल्क से फरार हो गए। कौन बाजवा लेके भाग गया? नहीं, वो जो पता नहीं कौन था, उसका मुझे नाम नहीं आता, जो फौजी थे। उनका कहने का मतलब है कि उन्होंने डॉलर इकट्ठे किए हैं और वो लेके फरार हो गए। कहाँ फरार हुए? डैम जो बनाना था, डैम के लिए डॉलर इकट्ठे किए थे। हर दुनिया ने दिया, दाएं बाएं हर मुल्कों ने दिया इमदाद की, मगर कोई वहाँ डैम वहीं का वहीं है। तो ये किस हुकूमत में हुआ था? ये इन्हीं की थी। किसकी? इमरान खान की? क्या नवाज शरीफ की हुकूमत के डैम के लिए पैसे इकट्ठे किए गए थे? अब इनका कहने का मतलब है कि जो हुकूमत इन्होंने उस टाइम डैम के पैसे इकट्ठे किए गए ना, वो नवाज शरीफ की हुकूमत थी। और मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि 4 साल में हुकूमत जो चली है वो इमरान खान की चली, ये साल की हुकूमत दूसरी है। जब ये इमरान खान की भी हुकूमत आई ना, इमरान खान ने भी कुछ नहीं किया। उन्होंने पहले ये कहा जी, जो शुरू बैठे हैं, उन्होंने कहा, बोला जी तब्दीली आई है। ये तब्दीली आप सब बेटा देख रहे हैं, आपके सामने है, आपके समेत ही मुल्क के हालात क्या है। लोग तो बड़े खुश है, कहते हैं इमरान खान कहता है कि मैंने 10-10 लाख रुपया बीमारी के लिए दिया, उनको कार्ड बना के दिया, सेहत कार्ड बना के दिया, 12-12 हज़ार घरों को तक पहुँचवाया 2 साल पहले। आप कहते हैं कि उसने कुछ भी नहीं किया, थोड़ा बहुत किया है, बाकी वो उनको देना जो मुस्तहिक है, जिनका हक है, वो तो अपना मुंह मलाजा तोड़ सकते हैं। तो बहुत गरीब लोगों को 12-12 हज़ार रुपया मिला है, मैंने खुद देखा है। वो मिला, हाँ जी, मिला भी है तो अब कुछ भी नहीं है। फिर अब अभी भी लोग जाते हैं, कहते हैं कि उधर से मिल रहा है, उधर से मिल रहा है। आटा मिल रहा है, आटा की तरफ से मिल रहा है। मुझे ये चीज़ों का मालूम नहीं, आटा कौन दे रहा है, कौन सप्लाई कर रहा है, ये मुझे देखा है मैंने कि वो ट्रक के अंदर ना आटा रखा होता है। एक वाक़या हुआ है भगवानपुरे में, 3 औरतें गई हैं आटा लेने, वो ट्रक जो खड़े होते हैं, वो पता नहीं कहाँ कोई उनको उठा के लेकर गायब हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई। ये भगवानपुरे का वाक़या, ये 2-3 हफ्ते पहले का। इनको चाहिए ना कि हर एक की प्रोग्रेस निकालें, उनका पता करें, वो भी किसी की माएँ हैं, किसी की बहनें हैं, इनको चाहिए ना उसकी तफ्तीश करें, उनको देखें क्या उनके घर कुछ ये नहीं। अदब आप हम किसी भी हुकूमत से खुश नहीं है? हम नहीं है खुश, किसी भी हुकूमत से खुश? बेटा जो आएगा वो अपना ही करेगा,
वो अपने बैंक काले करेगा, जाएगा। बस मुझे अब ये लास्ट जवाब दे, किसको ठीक होना चाहिए, पहले हुकूमत ठीक हो या आवाम ठीक हो? आवाम को होना चाहिए। पहले आवाम ठीक हो। हाँ, जिन्होंने इनको सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। तो के सर पे मुसल्लत की आवाम खुद कर रही है। पता क्या वजह, आवाम सही हो ना तो हुक्मरान भी ठीक हो जाता है। इन्होंने उनकी खुली छुट्टी दी है, जो मर्जी करो भाई, ऐसे करो ऐसे करो। अब पेट्रोल और डॉलर महंगा हुआ है 1 साल के अंदर, आवाम बाहर नहीं निकली। और तो बस जिनके हाथ थम गए हैं, जिनके मुट्ठियाँ गर्म है, वो कब निकलेंगे? वही एक मैं तुम्हें बात बताऊं, जो होगा ना हमारे जैसा सफ़ेद, वो अकेला 10 15 20 जी 50 जी लेके कहाँ जाएगा? उसके साथ कोई नहीं चलेगा। अगर वो आएंगे भी ना सड़कों पे तो ये डंडे पुलिस वाले पीछे से आर्डर आ जाएगा। कहाँ से ऑर्डर? पीछे से इन्हीं का आर्डर है जो बैठे हुए हैं। इस साल में हुकूमत चल रही है। हाँ जी, उनका सभी का बड़ों बड़ों का, इनको डंडे मारो, आंसू गया छोड़ो। इतने साल हो गए ये अपना जो हमारा कश्मीर है वो आज तक ये आज़ाद नहीं करवा सके। बेशक उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गलती थी, ये भी मुझे मालूम है। इतने साल हो गए हमारे, वो भी भाई हैं, मुसलमान हैं, ये भी भाई हैं। ये जो सब है बड़े जितने वज़ीर आला सब ये हमारे अपने भाई भी हैं, पड़ोसी भी हैं। हमारे एक पाकिस्तान की ये शान है। इनको ये चाहिए ना कि शान अपनी ऊंची न रखे, साथ मिलकर चले। अच्छा, आप मुझे बताया, अगर हुकूमत को आप कोई मैसेज देना चाहे कि ये हुकूमत ये ठीक करे तो क्या मैसेज? जी जी, हुकूमत को अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं तो सबसे पहले कौन सा ऐसा मैसेज देंगे कि ये चीज़ ठीक होनी चाहिए? सबसे पहले तो महंगाई ठीक होनी चाहिए, डॉलर का रेट कम होना चाहिए। हाँ, उसके बाद हर चीज़ ठीक होती जाएगी। चले, मुझे इजाज़त दें। मेहरबानी, शुक्रिया।